السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ دری ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اسی قسط نمبر 10۔ حتیٰ کہ ابو کے کرائسس سے نکل کر آنے کے بعد اس دن جب میں نے اپنی امی کو پے دینا چاہی تھی تو پھر امی نے لینے سے انکار کر دیا کہ اب مجھے نہیں، بہو کو ہی دیا کرو۔ لیکن میں نے بھی پھر الماس کو ایک پیسہ نہیں دیا، ساری پے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ میں نے تو اس کی مہر میں نے تو اس کی مہر کی رقم تک اسے نہیں دی تھی جو اس کی اپنی چیز تھی، اور مجھے بہت پہلے اسے دے دینا چاہیے تھی۔ میں سوچ میں گم تھا اور بڑے بھائی اپنی کہے جا رہے تھے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تم تو کم از کم اتنا ہی کر لیا ہوتا کہ اسے سمندر پر ہی لے جاتے۔ اب کی بار میں چڑ سا گیا۔ کراچی میں رہتے ہوئے کبھی سمندر پر گئی نہیں ہوگی کیا وہ؟ چڑھ کر میں نے پوچھا۔ ارے میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور آگے سے مجھے کیا جواب مل رہا ہے؟ بڑے بھائی چیخی تو پڑے تھے۔ یعنی تم مان ہی نہیں رہے ہو کہ ذاتی تمہاری طرف سے ہو رہی ہے؟ بڑے بھائی ماتھے پر بڑھ ڈال کر مجھے دیکھ رہے تھے اور میرا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ ارے تم سے کہہ رہا ہوں میں، تڑک کر انہوں نے کہا تھا۔ سن رہا ہوں میں، میرے لہجے میں خفگی تھی۔ سن رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ضروری تھا کہ تم یہ سب کہ میں تم کو یہ سب کہتا، یا کوئی اور کہتا تب تمہیں خیال آتا؟ اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ تم ہر کام کسی کے کہنے سے ہی کرو؟ تمہارے خود کے اندر عقل نہیں ہے؟ خاصی ناراضی سے انہوں نے پوچھا تھا۔ اچھا آپ اتنا خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے لے جاؤں گا میں اسے، میں نے اب کی بار ناراضی سے کہا۔ لے جاؤں گا نہیں، لے کر جاؤ ابھی، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اچھا، میں نے ناراضی کے عالم میں کہہ کر آگے جانے کے لیے قدم بڑھا دی۔ اور ذرا ٹھہرو۔ بڑے بھائی کے لہجے میں خلاف توقع اب کی بار تھوڑی نرمی تھی۔ جی، میں نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ تم انٹرسٹڈ تھے نا جواہر میں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تم نے مجھے خود بتایا تھا، اور میں انہیں وہ جواب ہرگز نہیں دے سکا جو میں خلدون ابراہیم کو دے کر آیا تھا۔ میری نگاہ خود بخود جھک گئی تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ میں کہہ نہیں سکا کہ وہ تب کی بات تھی، اب وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ بڑے بھائی میری خاموشی کو میرا جواب سمجھے تھے۔ تو جب بیوی تمہاری پسند کی ہے تو پھر؟ بڑے بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں خاصا بے بس سا ہو کر باہر چلا آیا تھا۔ اس کی تو پھر کا جواب تو پھر میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا عجیب بات ہے کہ الماس کو اس گھر میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور گھر بھر اس کا حامی تھا۔ امی، ابو، بڑے بھائی مجھ سے جواب طلب کر رہے تھے اس کے معاملے میں۔ گھر بھر اس زیادتی کو محسوس کر رہا تھا، زیادتی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ زیادتی میری طرف سے ہو رہی تھی، مگر اس سلسلے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی میری کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا اور کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں پاتا۔ الماس میرے لیے ایک ایسا نوالا تھی جو میرے حلق میں اٹک گیا تھا، جسے میں اگل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اسے مجھ سے نگلا جاتا تھا۔ الماس کے سلسلے میں میں ایک دم بے بس تھا، لاچار، مجبور۔ کم از کم مارتھا ایوانس کے سلسلے میں اس قدر بے بس نہیں تھا۔ میں خاموشی سے چلتا کچن میں پہنچا تھا۔ بڑی بھابھی کے ساتھ الماس بھی اس وقت وہیں تھی اور وہ اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ بڑی بھابھی کے سامنے مجھے اس سے کچھ کہتے حجاب آیا تھا۔ بھابھی، آپ کو بڑے بھائی بلا رہے ہیں۔ نہ جانے کیسے ایک دم میرے منہ سے پھسل پڑا تھا۔ اچھا، ان کا لہجہ سادہ سا تھا، مگر مجھے ذو معنی لگا۔ میں خفیف سا ہو گیا۔ جواہر میں ابھی آئی، کہہ کر وہ جلدی سے کچن سے نکلی تھی۔ الماس سر ہلا کر بدستور برتن دھوتی رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر نل بند کر دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں، مختصراً کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی میرے پیچھے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کون سے کپڑے پہنوں؟ مجھے خواتین کے کپڑوں کا کوئی آئیڈیا نہیں، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کلر کے متعلق تو ہوگا۔ میں نے اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے تو تم کو ہمیشہ اسکول یونیفارم میں دیکھا تھا۔ میرون اور کالے کلر کا کمبینیشن تم پر سوٹ کرتا تھا، میں نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی صاف کرنے کے بعد لاک کھولنے کے لیے ہاتھ جیب کی طرف گیا تو خیال آیا کہ چابی تو میں وہیں کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھول آیا ہوں۔ سو میں چابی لینے کے لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ الماس میرون سے رنگ کا سوٹ پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والے عکس کو میں چند ثانیے تک پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم میری طرف مڑی تھی۔ مڑتے وقت اس کی کمر سے بھی خاصی نیچے جاتی لمبی چوٹی میں میری نظر الجھ گئی تھی۔ میں تب بھی اس کے بالوں کی لمبائی کا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بکھرے اس کے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا، جسے اب وہ اپنے شانوں پر برابر کر رہی تھی۔ چابی؟ میرے کہنے پر اس نے گاڑی کی چابی اٹھا کر مجھے دی۔ مجھ سے کمرے میں مزید روکا نہیں جا سکا۔ میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی تک تیز تیز قدموں سے آتے میرا سانس پھول گیا تھا۔ پھر گاڑی کے کاغذات وغیرہ چیک کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیوں ایک دم خیال آیا کہ مجھے نکاح نامہ بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر کمرے میں آیا تو اب کی بار الماس ٹخنوں تک کوٹ پیشانی سے تھوڑی تک اسکارف پہنے چشمہ لگائے تیار کھڑی تھی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم کوٹ پہنتی ہو؟
स्कार्फ ओढ़ती हो, चश्मा लगाती हो। मैं अपने लहजे की हैरत किसी तौर पर नहीं छुपा सका था। हाँ, क्यों, तुमने अब देखा है? उसने तो मुझसे कहीं ज़्यादा हैरत से पूछा था। जब अब्बू हॉस्पिटलाइज थे तो मैं जितनी मर्तबा भी हॉस्पिटल आई थी ये पहन कर ही आई थी। चश्मा भी लगा रखा था। अच्छा, मुझे पहली बार अपनी बेखबरी पर शर्मिंदगी हुई। कितना लाइल्म था मैं अल्मास से। और वो मुझसे कह रही थी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। वो चश्मा लगाकर कोट स्कार्फ में न लगी इतनी अच्छी रही थी। स्याह रंग का स्कार्फ उसकी साफ रंगत पर बहुत नुमायां हो गया था। मुझसे ज़्यादा देर उसे ना देखा जा सका था। ऐसा करो, चेहरा भी ढक लो, मैंने डर कर उसे कहा। उसने तामील में 5 सेकंड भी नहीं लगाए थे। नकाब करने के बाद अलमास की आंखें कुछ और दिलकश लगने लगी थी। और अच्छा था कि उनके आगे चश्मा आ गया था। चश्मा नज़र का है? हाँ। क्या नंबर है? -1.25। कब से लगा रही? यूनिवर्सिटी के ज़माने से। अच्छा। मेरी नज़र इस चेहरे पर फिसलती हुई अचानक उसके पैरों पर पड़ी। स्याह 2 स्टेप वाली सैंडलों में मुकीद उसके सफ़ेद पैर कुछ और भी सफ़ेद लग रहे थे। मेरी नज़र उधर ही जमी रह गई थी। ये जूते? मैंने घुटी घुटी आवाज़ में कहा था। मैं दूसरे पहन लेती। 2 सेकंड की भी देर किए बगैर तीसरे सेकंड में वो बंद जूते पहने मुझसे पूछ रही थी, ये ठीक है? मुझसे बामुश्किल इस्बात में सर हिलाया जा सका। चश्मा ठीक करने के लिए उसने हाथ ऊपर उठाया और उसके सफ़ेद बेदाग हाथों को देखते मेरा बेख्तियार दिल चाहा उसे कहूँ कि इन्हें भी छुपा लो, मगर मैं इसे कुछ कहे बगैर गहरी सांस लेकर अलमारी की तरफ बढ़ गया था। वो मुझसे कह रही थी। अब मेरा ध्यान उसकी बात पर ना था। अपनी अलमारी के निचले खाने में से निकाहनामा निकालते मैं सोच रहा था कि अलमास से ये सब फरमाइशें करने की ज़रूरत तो ना थी। वो तो खुद इन बातों का बड़ा ध्यान रखती थी। मुझे एकदम ख्याल आया, तो वो घर में भी ऐसे ही रहती थी। मेरा उससे अक्सर सामना नाश्ते की टेबल पर ही होता था। और अगरचे मैंने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी, मगर सरसरी सा देखने पर भी मैंने उसको हमेशा तमीज़ से रहते हुए देखा था। बड़ी बड़ी चादरों दुपट्टों से खुद को लपेटे देखा था। वो सिर्फ बेहिजाब मेरे कमरे में मेरे सामने हुई थी। क्या अजीब बात थी कि आज मैं पहली बार इस बारे में इस अंदाज से सोच रहा था और सोचे ही जा रहा था। मुझे याद आ रहा था कि मैंने उसको बड़े भाई, छोटे भाई और अब्बू के सामने नज़र झुकाकर लिहाज, अदब और धीमे लहजे में बात करते देखा था। यानी वो हयादार भी थी और बाकिरदार भी। मगर फिर उस रात को क्या हो गया था? मैं उलझ गया था। अच्छा, उस रात तो आई वॉज द कल्प्रिट, मैंने गलती से होकर सोचा था। बड़ी बेदिली से घर से बाहर निकलने से पहले मैंने अलमास के साथ अबू और अम्मी के कमरे में ये बताने गया कि हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ, अबू ने खुशी खुशी कहा था। हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है, आराम से आना, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब्बू के लहजे को तो मैंने बड़ी तवज्जो से नोट किया था। फिर जब मैं और अलमास बाहर निकले तो बड़े भाई और छोटे भाई की मुस्कुराहट शरारत आमेज थी। ड्राइंग रूम से गुजरकर पोर्च में जाते मुझे अंदाजा हो गया कि खिड़कियों के पर्दे के पीछे से बड़ी भाभी छोटी भाभी झांक रही हैं। मेरी पेशानी अर्कालूद हो गई। रास्ता भर मैंने अलमास से कोई बात ना की। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? रास्ते में उसने मुझसे पूछा। मैंने एक नज़र उस पर फेंकी। तुम मुझे आप कब से कहने लगी? तुम पसंद करो तो मैं तुमको आप ही कहा करूँ। रहने दो, आप तुम्हारे मुंह से जचता नहीं। बहरहाल हम ही इस बहरहाल हम सी साइड पर जा रहे हैं। मैंने उसे बता तो दिया, मगर मैं सोच रहा था कि हैरत अंगेज बात है, जब हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं था तो मेरे पास उससे करने के लिए ढेरों बातें हुआ करती थी, सेंसिबल भी और इनसेंसिबल भी। और आज जबकि हम दोनों में हर किस्म का रिश्ता है, शरई भी, कानूनी भी, जायज़ भी, हलाल भी, तो मेरे पास उससे करने के लिए कोई बात नहीं। क्या डिक्शनरी से सारे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, या अगर लफ्ज़ हैं तो गूंगे हो गए हैं, या मैं बात करना भूल गया हूँ, या मुझे जुमलों की कंस्ट्रक्शन करना नहीं आती? मैं सोचता रहा कि जब अलमास मेरे लिए बिल्कुल गैर थी, ना महरम थी, तो मेरे पास उसके लिए जज्बात ही जज्बात थे। मैं उससे मिलते वक्त मैं उससे मिलते वक्त बहुत पुरजोश रहता था। मेरे एहसासात उससे मिलकर आने के बाद भी खुशगवार होते थे। और आज जबकि अलमास मेरी अपनी थी, बिल्कुल महरम थी, तो मेरे सारे जज्बात दफन हो गए। हर एहसास मर गया था। बस एहसास शर्मिंदगी, एहसास बेबसी और एहसास गुनाह जिंदा थे। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। मैं बिल्कुल बर्फ़ की सिल साबित हो रहा था। तब मैंने अलमास को उस पर कोई हक ना होते हुए भी इतनी मर्तबा उसको उसकी नानी के यहाँ छोड़ा था कि मुझे सही तरीके से गिनती भी याद नहीं। इतनी मर्तबा मैं उसके साथ जाता था, जबकि इस वक्त धर लिए जाने का हर वक्त इम्कान रहता था, मगर तब मैं किसी से डरता नहीं था। और आज जबकि मैं अलमास को बहैसियत शौहर पूरे हक के साथ लेकर कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे अजीब सा खौफ है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मुझे अब निकाहनामे के तौर पर तहरीरी सबूत मेरे पास, फिर भी मुझे पकड़ लिए जाने का डर है। इसी आलम समंदर पर पहुंचने के बाद मैं साहिल से टकराती शरीदा सर्द मौजों को देखता रहा था। समंदर तक में इज़्तिराब था।
मतजर था, तलातम था और मैं ठोस था, साकिन था, चुप था। मुझ पर किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, मगर मेरा हर अमल मेरा मेरा हर अमल ज़बरदस्ती को शो कर रहा था। अलमास भी मेरे रवैये से थक सी गई थी। मुझे शर्मिंदगी ने आन लिया। मैंने हत्ते इम्कान कोशिश की कि खुद को संभाल सकूं। मेरी हर कोशिश बेकार गई। मैं खुद भी थकने सा लगा था और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं। अलमास वाकई ज़हीन औरत थी, समझ गई। और ऐन उस वक्त जबकि वो मुझसे सवालात कर रही थी, ज़ोहर की अजान हो गई। मैंने अलमास के सवाल जवाब से बचाए जाने पर शुक्र मनाया था। मैं अलमास को लिए करीबी मस्जिद चला आया। उसकी शोहरत के बारे में मैंने सुन रखा था, मगर इसमें आने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ था। अलमास को ख़वातीन वाले हिस्से में भेजकर खुद हजरात वाले हिस्से में आया तो मेन एंट्रेंस पर ही संगे मरमर की दीवार के कोने में खुदे अल्फाज पर नज़र पड़ी थी। अगरचा खुदे हुए अल्फाज इस कदर बड़े भी नहीं थे कि बिल्कुल नुमाया हो रहे थे, मगर फिर भी साफ और वाज़ह थे। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय खुल्दून इब्राहिम। इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते मेरी तबीयत अजीब सी हो गई। मस्जिद के अंदर पहुंचने पर उसकी दीवारों पर चीख चीख कर बोलने लगी कि इन्हें खुल्दून इब्राहिम ने ही कंस्ट्रक्ट किया होगा, डिज़ाइन किया होगा। खुल्दून इब्राहिम के हर काम में उनका मखसूस स्टाइल और हर हालत में झलकता था। हर कोई चाहे लाख कहता रहे कि उनकी कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन की हुई हर इमारत पहली दूसरी इमारत से मुख्तलिफ नज़र आती है, मगर मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मुझे फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा हो जाता था। फिर तो मुझसे नमाज में भी कंसंट्रेट ना हो सका। हालांकि मैं तकबीरें भी पढ़ रहा था, सना भी कह रहा था, हम्द भी पढ़ रहा था, तलावत भी कर रहा था, रुकू सजूद किसी भी रुकन की अदायगी में मज़ा नहीं आया। मानी मतालिब सब मेरे सर से गुजर रहे थे। अजीब खाली जहनी किसी कैफियत थी। अपनी ही कैफियत खुद मेरी समझ से बाहर थी। इसी आलम में मैंने पूरी नमाज पढ़ी थी और मैंने अलमास को लंच करवाया था। साहिल पर वाकई इस वक्त रेस्टोरेंट में घुसते ही उसकी दीवारें भी मुझसे खाना ढंग से खाया नहीं गया था। अलबत्ता अलमास को मैं हैरत से देख रहा था। वो कमाल की औरत थी। नकाब भी उसके खाने में हारिस नहीं हो रहा था। खाना इसने भी कम ही खाया था। बहुत जल्द उसने हाथ रोक लिया। क्यों, खाना अच्छा नहीं है? मैंने फौरन पूछा। नहीं, खाना बहुत अच्छा है, मगर मैं एंजॉय नहीं कर पा रही खाने को, उसने साफ गोई से कहा। एंजॉय तो खैर मैं भी नहीं कर पा रहा, मैंने दिल से एतराफ़ किया था। शायद जितनी एंजॉयमेंट मुझे करनी थी मैंने शादी से पहले ही कर ली थी। मैंने सोचा था और अब कोई बात मुझे एंजॉयमेंट वाली लगती ही नहीं थी। अब तो सिर्फ बेदिली थी, ज़बरदस्ती। अब तो बस हर चीज़ ठोंस दी गई थी, मुसलत कर दी गई थी। तुम क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही? मैंने बिलाकर पूछ लिया। तुम्हारी वजह से। उसने इत्मीनान से मुझ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैं दंग सा रह गया। मैं तुम्हें देख रही थी। तुमने भी बहुत जल्द हाथ रोक लिया था। जब तुम ठीक तरह से खा नहीं सके तो मैं कैसे खा सकती थी? उसने सकून से कहा। ये क्या बात हुई? तुम्हारा पेट क्या मेरे पेट के साथ लिंक्ड है? अब की बार मैं कदरे चिढ़ गया। हमें कुछ ना कुछ और कोई ना कोई लिंक तो है ही, उसने गहरे लहजे में कहा। हाँ, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, मैंने तल्खी से कहा था। चलो यही सही, उसके लहजे में बला का इत्मीनान था। मैं तो इसको सब कुछ मानती हूँ। अब इतने ढेर सारे को क्या करेंगे हम? मैंने बचे हुए खाने की तरफ इशारा करते कहा। पैक करवा लो, किसी ज़रूरतमंद को ही दे देंगे, उसने मशवरा दिया। शायद उसकी दुआएं ही कुछ काम आ जाएं। हाँ, शायद किसी की दुआएं ही मुझे लग जाएं, मेरे काम आ जाएं। मेरी अपनी तो कोई दुआ मुझ पर असर नहीं करे। मैंने गहरी सांस लेकर खाना पैक करवाया और चौराहे पर बैठे एक फ़कीर को दे दिया। इसके बाद मैं अलमास को आइसक्रीम पार्लर भी ले गया था। ये महज इत्तेफाक था कि आइसक्रीम पार्लर भी अलमास की मामा ने कुछ छोड़ा भी था। तुम जानती हो, वो मस्जिद जिसमें हमने नमाज पढ़ी है, वो रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाना खाया है, और ये आइसक्रीम पार्लर किसने बनाया है? मैंने दबी संजीदगी के साथ पूछा। हाँ, मामा ने, सादगी से जवाब दिया। मगर तीनों की डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर में कोई यकसानियत नहीं है ना? मज़े की बात, वो सादगी से पूछ रही थी और मुझे चुप्सी लग गई। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। इसके बावजूद भी मैं अलमास को उसके वालिदैन के घर ले गया था। तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो अफनान? रास्ते में अलमास ने मुझसे पूछा भी था। पता नहीं। ये क्या जवाब हुआ? मुझे भी ये नहीं पता। अलमास चुप सी हो गई। अफनान, चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसने पुकारा था। तुम कह क्यों नहीं देते मुझसे? अपना मसला मुझसे डिस्कस क्यों नहीं करते? कुछ शेयर क्यों नहीं करते मुझसे? आखिर हम रूम भी तो शेयर करते ही हैं ना? उसने बहुत लाचारी से कहा और मुझ पर बेबसी तारी हो गई। नहीं, मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकता। मैं किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर सकता। मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरी परेशानी क्या है? मैंने बहुत लाचारी से सोचा था। अलमास के साथ उसके वालिदैन के घर पहुंचने पर इस कदर आवभगत हुई कि मैं खासा शर्मिंदा होकर रह गया। अपनी इसी शर्मिंदगी को कम करने के लिए ही मैं अंकल आंटी की गुफ्तगू में हिस्सा लेने की भरपूर कोशिश करता रहा। अपने दोनों साले साहिबान से गुफ्तगू करके मुझे अपनी बर्फ़ की सिल जैसी कैफियत कुछ पिघलती महसूस हुई। दोनों साढ़े 18-19 साल के दोनों साढ़े 18-19 साल के बहुत काबिल दिलचस्प और ज़हीन लड़के थे। हाँ, पता कैसे चलता कि ज़हीन बहन के ही भाई हैं? अलमास के घर वालों ने रिफ्रेशमेंट पर खासा एहतमाम कर लिया था और इसके बावजूद खाने के लिए भी रोक रहे थे।
मैंने सलूक से मुतासर मैं सलूक से मुतासर होए चले जा रहा था। मैं खाना घर जाकर ही खाऊंगा, मैंने अंकल के बेहद असरार पर शाइस्तगी से कहा। अगरचे इसकी गुंजाइश तो नहीं है। मैंने थोड़ा झूठ बोला था। सच तो ये था कि मेरा कुछ खाने पीने का मूड ही नहीं था। रिफ्रेशमेंट से भी मैंने थोड़ा सा ही इंसाफ किया था। चलते वक्त जब मैंने ये देखा कि अंकल आंटी उदास हो गए हैं तो मैंने अलमास से कहा कि तुम अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। तुम क्या चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? उसने संजीदगी से पूछा था। मैं इसे अब्बू के कहने के मुताबिक फोर्स ना कर सका कि अब्बू तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। मैंने कहा जैसे तुम्हारी खुशी, जो तुम चाहो। वो जैसे सोच में पड़ गई। मैं रुक जाती, मगर मैं इतना लंबा अरसा अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकती। वैसे भी आज दिन भर हो गया अब्बू तो मेरे बगैर। वो कहते कहते रुक गई थी। तब मैंने खासी ममनूनियत से उसे देखा था। रास्ते में मैंने उसको उसके मामा से मिलाने की ऑफ़र भी दी थी। उसने मना कर दिया। इसके बाद मैंने उससे जिस बात को भी कहा था उसने मुख्तलिफ तौजीहात दी थी। मैं खासा मुताजिब हुआ। तुम कैसी औरत हो, खुद मुझसे कोई फरमाइश नहीं करती, मैं पूछता तो मना कर देती हो। तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? उसने मेरे सवाल के जवाब में सवाल किया था। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से पूछा। तुम हंसते नहीं? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तुम्हारी फरमाइश से मेरी हंसी का क्या ताल्लुक? मैंने चिढ़कर पूछा। मैंने तुमको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। कोई मुस्कुराने वाली बात हो तो मुस्कुराऊं। मैंने अब की बार बहुत बुरा मानकर कहा। मैं तुमसे और क्या फरमाइश करूं अपना? मेरे कहने पर तो तुम मुस्कुराते तक हो नहीं। उसकी आज़ादगी से कहने पर मैंने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की। वो मेरी तरफ गौर देख रही थी। पहले जब तुम हंसते थे ना तो मुझे लगता था पूरी कायनात खुश है। वो कहते कहते रुक सी गई। और अब, मैंने बंद होते हुए दिल के साथ पूछा था, और अब ऐसा लगता है कि कायनात कभी खुश रही ही नहीं। उसने आज़र्दगी से कहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर होंठ भींच लिए। बास बातें वाकई अपने अख्तियार में नहीं होती। मेरी तो हंसी और मुस्कुराहट तक पर मेरा अख्तियार नहीं था। घर पहुंचने पर गाड़ी से उतरने से पहले अलमास के लहजे भर को मुझे देखा और कहा, आज का दिन मेरे साथ तुमने गुजारा, इसके लिए शुक्रिया। मुझको इतना वक्त देने का बहुत शुक्रिया, मगर अपना तुम खामखा खुद पर जबर ना करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। आइंदा अगर तुमसे कोई भी इस किस्म की कोई बात करे तो उसे कह देना कि अलमास को घूमने फिरने का शौक नहीं। अलमास को तो ये अलमास तो ये कहकर उतर गई और मैं अच्छा खासा खज्जल हो गया। सो बेख्तियार उसे आवाज़ दे डाली, अलमास सुनो। अलमास ने पलटकर मुझे देखा, फिर गाड़ी की खिड़की से कोहनियाँ टिकाए खड़ी हो गई। मेरी तरफ से तुम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुम्हें कभी भी कहीं भी जाना हुआ करे तो इस नंबर पर कॉल कर दिया करो। मैंने नंबर उसे बताया था। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा। काबिल एतमाद और शरीफ आदमी है। तुम चली जाया करना। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। तुमने एमफिल किया है, अगर पीएचडी भी करने का इरादा है तो कंटिन्यू कर सकती हो। अलबत्ता जॉब करना ख़वातीन का मुझे पसंद नहीं। फिर भी अगर तुमको तुम्हारे स्टैंडर्ड की साइंटिफिक या रिसर्च ऑफिसर लेवल की कोई जॉब मिलती है तो मैं तुमको मना नहीं करूँगा। अलमास ने कुछ कहा नहीं, सर हिलाकर अंदर चली गई और मेरे अंदर पहुंचने पर सबसे पहले सामना बड़ी भाभी से हुआ था। अरे, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? बड़ी भाभी ने बड़ी हैरत से पूछा था। अब क्या रात भी बाहर गुजरते अब भी रात अब क्या रात भी बाहर गुजारते भाभी? जवाब देते थकन खुद ब खुद मेरे लहजे में आ गई थी। गुजार लेते, क्या हर्ज था? उन्होंने इत्मीनान से कहा। मुझे कल ऑफिस जाना है। मैंने कदरे बुरा मानकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, वो तो तुम हमेशा जाते हो। उन्होंने कंधे उचकाकर कहा। खाने में कितनी देर है? मैंने बात बदलने को पूछा और फिलहाल मुझे पूछने को सबसे माकूल बात यही मिली थी। बड़ी भाभी ने उसी पल पकड़ लिया। हाय, मैं तो समझ रही थी कि डिनर भी करके आओगे तुम लोग। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब की बार मैंने कदरे बेजारी से कहा। अच्छा, मैं एक वक्त का खाना ही बाहर खा लूँ तो मेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा, तो इसमें इस कदर नाराज़ी वाली क्या बात है? खाना तकरीबन तैयार है। अच्छा, तो बस मैं नमाज पढ़कर आकर खाना खाऊंगा। मैं कहकर जल्दी से निकल गया था। कहीं वो मुझसे इंक्वायरी ही शुरू ना कर दें। और मैं समझ सकता था कि ये इंक्वायरी ज़रा ख़तरनाक किस्म की होती। मैं नमाज़ पढ़कर आया तो खाना लग चुका था। हस्बे मामूल खाना बड़ी भाभी या छोटी भाभी ने बनाया था। स्पेशल डिश कभी बननी होती तो अम्मी बनाती थी। मीठा भी अम्मी ही बनाती थी। इस वक्त भी मीठे में खीर थी। बड़ी भाभी ने हंसकर खीर की डिश मेरी तरफ बढ़ा दी। देवर जी, खीर चक्कर तो बताओ कैसी बनी है? मैंने सवालिया नज़रों से बड़ी भाभी को देखा। भाभी, शुरुआत हेड ऑफ़ दी फैमिली से की जाती है। मैं कहाँ का हेड रखा मैं कहाँ का हेड रखा? मेरी बात सुनकर घर भर मुस्कुराने लगा। बच्चे खीखी करके हंसने लगे। अलमास अलबत्ता संजीदा सी थी। मैं उलझन में पड़ गया। चच्चू, इस मीठे में कुछ खास बात है, फरहान आदिल ने कहा था। ओफ़ो फरहान, चुप, तुम बहुत बोलते हो। बड़ी भाभी ने डांट कर उसे चुप करवा दिया था। अच्छा, तो फिर किसी खीर मिक्स रेसिपी को पहली मर्तबा ट्राई किया होगा। मैंने गोया अंदाज़ा लगाना चाहा। अरे नहीं भई, अम्मी ने पेशानी पर हाथ मारकर कहा। ये खीर बहू ने बनाई है आज। अम्मी के बजाय अब्बू ने बहुत खुश होकर बताया था।
میں نے اس لمحے بغور ابو کو دیکھا۔ وہ خوشی خوشی صرف بتا ہی نہیں رہے تھے بلکہ خوش لگتے بھی تھے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا، واہ بہو سے بڑا خوش ہیں ابو۔ میں نے رش سے سوچا تھا، مجھ سے تو خفا ہی رہے، چلو مجھ سے ریلیٹڈ کسی شخص سے تو صحیح۔ ابو خوش تو ہیں۔ اس لمحے پتہ نہیں کیوں مجھے پہلی مرتبہ الماس سے جلن نہیں ہوئی تھی۔ اور بھئی اس کھیر کے افتتاح کے ساتھ ہی جواہر نے کچن میں بھی اپنے جواہر دکھانے کا آغاز کر دیا ہے۔ بڑی بھابھی نے ہنس کر کہا تھا، چلو جلدی سے چکر بتاؤ، ابو مجھ سے کہہ رہے تھے پہلے آپ لے لیں۔ میں نے ڈش ابو کی طرف بڑھا دی۔ ارے بھائی میں تو لے ہی لوں گا، اور مجھے پسند بھی آ جائے گی کیونکہ یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ ساری بات تو تمہاری پسند کی ہے، حتمی فیصلہ تو تمہاری رائے ہی دے گی، ابو نے کہتے کہتے ہی خود ہی میرے پیالے میں ڈال دی تھی۔ اور بعد ازاں گھر بھر نے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ اپنے گھر والوں کے ہر فعل سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے گھر میں الماس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے تک تو صرف سمجھ سکتا تھا، اندازہ کر سکتا تھا، آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابو نے نہ صرف تعریف کی تھی بلکہ اسی وقت کئی کڑکڑاتے نیلے نوٹ الماس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ نہ صرف ابو نے بلکہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے بھی۔ پھر سب لوگ متوقع نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ امی نے تو مجھ سے پوچھ بھی لیا تھا، تم کیا دے رہے ہو بہو کو اپنا؟ اور میں اس اچانک سوال پر سٹپٹا کے، بھائی سارا، یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی طے کر لیں گے۔ ابو نے بروقت مجھے بچا لیا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ اس رات پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں الماس سے پہلے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرے کمرے کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبھی یہ کمرہ سجا بھی ہوگا، آراستہ بھی کیا ہوگا، بلکہ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ابھی بھی میرے زیر استعمال ہے، جیسا کہ میری شادی سے پہلے تھا، اور کسی دوسرے کا یہاں پر کوئی وجود نہیں رہا ہوگا، وہ بھی ایک عورت کا۔ میں حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ تھا جو آج میں اپنے کمرے کی حیت پر اس قدر غور کر رہا تھا، ورنہ الماس کی اس کمرے میں موجودگی کی صورت میں اس پر دھیان نہ دیتا تھا، اور نہ ہی کسی اور چیز پر۔ اور پھر کمرے کو اسی حالت میں مینٹین رکھنے کا کمال بھی تو الماس کو ہی حاصل رہا ہوگا۔ میں نے طویل سانس لی اور بیٹھ کر الماس کے مہر کے لیے چیک لکھنے لگا۔ جب الماس کمرے میں آئی تو میں اس کے آنے پر اس کی ہر ایکٹیویٹی کو آبزرو کرتا رہا۔ تم مسحری استعمال کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس کو زمین پر بستر بچھاتا دیکھ کر میں نے ایک دم پوچھ لیا تھا۔ تم زمین استعمال کرتے ہو تو میں مسحری استعمال کیسے کر سکتی؟ وہ مجھے اکثر لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی ایک لمحے کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم فرش پر سوتی، میں نے آہستگی سے کہا تھا۔ مجھے بھی برا لگتا ہے جب تم زمین پر سوتے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اور پھر وہ اپنے بال کھولنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دی۔ تم بال کھول کر مت سویا کرو۔ چوٹی کے بل کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اچھا نہیں کھولوں گی، آہستگی سے کہہ کر چوٹی میں دوبارہ بل دے کر اس نے بال باندھ لیے تھے۔ میری نظر ایک بار پھر اس کے بالوں کی لمبائی میں الجھنے لگی تھی۔ اس نے بال ایک دم پیچھے کیے تو میرا حال رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کی طرح ہو گیا تھا۔ میں گڑبڑا سا گیا۔ کھیر مزے کی تھی، ایک دم میرے منہ سے نکلا۔ اچھا میں سمجھی تم کو پسند نہیں آئی، تم نے اس پر کچھ کہا تو نہیں تھا نا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب گھر بھر کے سامنے کیا کہتا میں الٹا اس سے پوچھنے لگا۔ پھر چند لمحے رک کر اس سے پوچھا، تم نے مجھے بتایا نہیں، تم مجھ سے کیا لینا چاہو گی؟ کچھ نہیں، اس نے سکون سے کہا۔ تم کو پسند آ گئی، تم نے تعریف کر دی، یہی بڑی بات ہے میرے لیے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر میں کچھ کہہ نہ سکا، مگر آگے بڑھ کر اس کا مہر کا چیک اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ تمہاری ہی چیز ہے، مجھے تم کو بہت پہلے دے دینی چاہیے تھی، مگر میں بہت دیر سے دے رہا ہوں۔ میرے بتانے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ سمجھ آ سکنے والے انداز میں دیکھتی رہی تھی۔ یہ مہر ہے تمہارا؟ مجھے اسے بتانا پڑا۔ وہ چند لمحے چیک کو دیکھتی رہی مگر اسے چھوا تک نہیں۔ بے فکر رہو تم، چیک کیش ہو جائے گا، میرے بینک اکاؤنٹ میں خاصی رقم ہے، میں نے وضاحت دی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، میں جانتی ہوں چیک کیش ہو جائے گا، میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے بینک اکاؤنٹ میں رقم بھی اچھی خاصی ہوگی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کا میں کیا کروں؟ اس کی لمبی چوڑی بات کے جواب میں نے صرف اتنا ہی کہا، جو چاہے سو کرو، تمہارا حق ہے، تمہارا پیسہ ہے۔ اس نے خاموشی سے چیک میرے ہاتھ سے لے لیا تھا، پھر گویا خود سے کہا، آج کا دن عام دنوں سے ہٹ کر قدرے بہتر، آج ہر طرف سے مجھے بڑی توجہ مل رہی ہے۔ خیر تمہارے گھر والوں کی طرف سے تو… وہ کہتے کہتے رک گئی تھی اور میں نے بے اختیار پوچھا، کیسے لگے تمہیں میرے گھر والے؟ گھر والے تو کسی کے بھی برے نہیں ہوتے۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ تمہارے گھر والے بہت اچھے ہیں۔ ہاں بس میں ہی برا ہوں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے فوراً کہا۔ تم برے ہوتے تو میرے گھر والے میری شادی تم سے کیوں کرتے؟ میرا ایک دم منہ کڑوا ہو گیا۔ اپنے گھر والوں کی بات مت کرو، اپنے ماما کی کہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی، پھر کہا، یاد ہے ایک مرتبہ تمہاری شادی کے سوال پر میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ماما سے کہوں گی، وہ میری شادی تم سے کروائیں گے، تم کو تب یقین نہیں آیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔
देख लो, मेरी शादी तुमसे मामा ने ही करवाई है। फिर चंद लम्हे बाद मुस्कुरा कर बोली, देखो अच्छा हुआ ना, मोहब्बत से मुसीबत तक के हीरो हीरोइन की तरह हमें घर से भागने की नौबत पेश नहीं आई, वरना तुम्हें तो किसी पहाड़ी मकाम के बारे में पता ना होता जहाँ हम पनाह लेते। मैंने लम्हे भर को सोचा, मुझे पिछला वक्त याद आया था, मुझे अपने जुमले याद थे, एक एक लफ्ज़ याद था जो कभी मैंने अल्मास से कहा था। मैंने बेख्तियार गहरी सांस ली। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सिर्फ खीर बनानी आती है या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। नहीं, मैं और भी बहुत कुछ पका लेती। बेफिक्र हो, मैं तुमको भूखा नहीं मारूंगी। मैं रोटी बहुत अच्छी पकाती हूँ, उसने बहुत एतमाद से कहा था। मैंने उससे देखा, तुम्हें ना मुझे रोटी पकानी सिखानी पड़ेगी और ना ही मेरे हाथ की जली हुई रोटी खानी पड़ेगी। उसके कहने पर मैं चुपचाप उसे देखे गया। क्या क्या याद था उसे, और वो मुझे क्या क्या याद दिला रही थी। अब जाहिर सी बात है, मेरे होते हुए तुमको ये अच्छा तो ना लगता ना कि बड़े भाई या छोटे भाई तुम्हारे लिए रोटी पकाते। उसके इस तरह कहने पर मेरी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी, और ये कितने ही साल बाद था जो मैं इस तरह मुस्कुराया था, और वो भी मुस्कुरा रही थी। वैसे तुम्हारे बड़े भाई और छोटे भाई को अभी तक अच्छी रोटी पकाना याद है? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बड़ी भाभी और छोटी भाभी के आ जाने के बाद से वो दोनों अब किचन में कदम तक नहीं रखते। बहुत मुमकिन है कि वो अब तक बेलन भी पकड़ना भूल गए। अलमास मेरी बात सुनकर मुस्कुराए गई, मगर मैंने उसे देखकर मैं उसे देखकर कहे गया, अब मैं रोटी पानी में भिगोकर तो खाऊंगा नहीं, पूरा खाना पकाना तो तुमको आता ही होगा, और सीने से लाने का बेहतरीन नमूना तो मैं देख ही चुका हूँ। अब की बार अलमास की मुस्कुराहट बेसाख्ता भरपूर थी। और तुम्हें पैसा कमाना आ गया ना? हाँ, और मेरी शेफ भी पूरी आ गई। मैंने बच्चों जैसे अंदाज में उसे बताया था। तुमने मुझसे पहली खरीद तुमने मुझसे पहली चीज खरीद कर देने की फरमाइश नहीं की। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। पूछा तो था, तुमने कहा ही नहीं कि। मैं कहते कहते रुक गया। जो कभी अलमास ने कहा था वो मैं कह नहीं सकता था, अलबत्ता वो कदरे संजीदा सी हो गई, और मेरे कुछ ना कहने के बावजूद कह रही थी। ये भी ज़रूरी था कि मैं तुमसे कहती। ये मुतालबा तो तुमको मेरे कहने से पहले ही पूरा कर देना चाहिए था। अलमास का लहजा ज़ो मायनी था और अल्फाज भी पुरमायनी थे। मैं चुपसा हो गया, फ़ौरन बात पलट दी। फिर उस रात हमने पहली मर्तबा पुराने किस्से दोहराकर मज़े लिए, खूब ढेर सारी बातें की थी, अच्छे दोस्तों की तरह, पुराने शनासाओं की तरह। फिर पता नहीं क्यों अचानक मेरी जहनी रूह बहक गई थी। मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई थी, वैसे ही थी, मसरूफ़ और रूकी भीगी सी। अलबत्ता उस दिन अफनान मुझे पहली बार अपने साथ कहीं लेकर गया था। साहिल समंदर पर पहुंचकर हम दोनों किनारों पर बड़े पत्थरों से टकराती लहरों को देखते रहे। मौसम उस दिन बहुत खूबसूरत था, मगर मौसम की यह खूबसूरती भी अफनान के मूड पर असरअंदाज ना हो सकी थी। वो पत्थर बना लहरों को देख रहा था और मैं बोर सी खड़ी रही। मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे यहाँ लाने में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। तुम मुझे यहाँ किसी के कहने पर लाए हो? तंग आकर मैंने पूछ लिया, लेकिन वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय खड़ा हुआ था। फिर लंच के बाद वो मुझे आइसक्रीम पार्लर ले गया था, लेकिन मैं कहीं भी उस एक लम्हे के लिए भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। वापसी के वक्त आधा रास्ता तय कर लेने के बाद उसने जैसे इतला दी थी, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ, और तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि किसके कहने पर। ये बताना ज़रूरी नहीं। क्या बड़े भाई के कहने पर? मैंने एकदम सवाल किया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्तगी से कहा, ख्वाह किसी के कहने पर सही। ताबेदारी तो अच्छी बात है, मगर ये फेज़ कितना लंबा है? मेरे सवाल पर वो एकदम चुप हो गया। बकिया रास्ता खामोशी से कटा। घर से ज़रा पहले मिठाई की दुकान के सामने उसने गाड़ी रोकी तो मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पहली बार तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन के घर जा रहा हूँ। खाली हाथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, उसने वजाहत दी थी। मैंने शुक्र किया था कि कम अज़ कम इतनी तमीज़ और रवादारी तो उसमें थी। अब्बू अम्मी मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। मेरा हाल अहवाल पूछने और मुझसे चंद एक बातें करने के बाद अम्मी अब्बू सारा वक्त अफनान आदिल से बातें करते रहे, और वो भी बड़ी तमीज़, शाइस्तगी और सुलझे हुए अंदाज में उनसे गुफ्तगू कर रहा था। आकिब और साकिब भी उससे यूं घुल मिल गए थे, गोया उसे अज़ल से जानते हों। अब्बू और अम्मी ने अफनान आदिल की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी की थी। रिफ्रेशमेंट में तकरीबन हर किस्म के मीठे और नमकीन से टेबल भर दी। वो तो खाने के लिए भी रोक रहे थे, मगर अफनान ने खुद ही मना कर दिया। वापसी पर अफनान आदिल ने मुझसे कहा, अपने मामा के घर का पता मुझे बता दो, तो मिलना चाहती हो तो ले चलूँगा। मैं उसकी फयादी पर हैरान हो रही थी। कहाँ तो वो इनका जिक्र भी पसंद नहीं करता था, और कहाँ वो ना सिर्फ आज खुद जिक्र कर रहा था, बल्कि मिलाने की भी ऑफर कर रहा था। ये आदमी समझ से बिल्कुल बाहर था। नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। उसने न जाने किस धुन में पूछ लिया होगा। मैं कहीं हाँ कह देती तो मिजाज ही खराब ना हो जाता। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे माजरती अंदाज में कहा था, सॉरी, आज इसी तरह सारा दिन निकल गया, मैं तुमको किसी ब्यूटी सैलून नहीं ले जा सका। ब्यूटी सैलून? मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा गई। ज़ाती तौर पर मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं चली जाया करूँगी।
میں نے ٹھنڈی سانس لیکر کہا، اس عنایات کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پسند نہیں تو پھر رہنے دو، اس نے اعتراض کیے بغیر کہا۔ پھر چند لمحے بعد بولا، میں شاپنگ تم کو پھر کبھی کروا دوں گا، چھٹی والے دن تو ویسے بھی بازار بند ہو جاتا ہے، مجھے شاپنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے اس کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ پھر جب ہم گھر پہنچے تو تقریباً سبھی نے حیرت سے پوچھا کہ تم لوگ جلدی نہیں آ گئے؟ اوپر سے بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی کا شریر انداز، ذو معنی جملے، شرارت آمیز مسکراہٹ، میں بالکل بوکھلا گئی تھی۔ سب کی نظروں کا سامنا کرنا مجھے خاصا مشکل لگ رہا تھا اور عفنان عادل حسب معمول فرار ہو چکا تھا۔ میں پھنس گئی تھی بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی کے سوالات سے، اور میں بھی۔ دن کیسا گزرا؟ اچھا گزرا، مزہ آیا بہت۔ کہاں کہاں گئے؟ عفنان نے لنچ کہاں دیا؟ میں نے بتایا۔ میں حد المقدور ان کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، جائے فرار مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اور جب دونوں بھابیاں مل جایا کرتی تھیں تو الامان الحفیظ۔ عفنان نے کیا کچھ کہا؟ چھوٹی بھابھی کے سوال پر میں سٹپٹا گئی تھی۔ یہ تو بہت پرسنل ہو جائے گا چھوٹی بھابھی، میں نے خود پر بمشکل قابو پاتے باوقار لہجے میں کہنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے ڈائریکٹلی میری عزت کا سوال تھا اور انڈائریکٹلی عفنان عادل کی عزت کا۔ اب کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا، مگر میں کہہ کر بہت پچھتائی کیونکہ بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی نے مجھے خاصا چھیڑا تھا، مگر بر وقت امی کے آ جانے پر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے بہت شکر ادا کیا تھا۔ تم لوگ آ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا ہمیں۔ میں اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، انہیں یقیناً برا لگا ہوگا۔ امی یہ آپ ہی کی طرف جا رہی تھی، ہم نے اسے روک لیا تھا، بڑی بھابھی نے جلدی سے کہا۔ میرا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ آج تو میرا برا بننا لازمی تھا۔ بہو اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے اچانک مجھ سے کہا۔ ابھی میں کوئی جواب بھی نہیں دے پائی تھی کہ بڑی بھابھی نے کہا، اور یہ لوگ تو ڈنر بھی کر کے نہیں آئے، ابھی عفنان کھانا تیار کر کے رکھنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اچھا چلو تم فریش ہو کر تو آؤ، پھر کھانا کھائیں گے، امی نے بڑی بھابھی کی بات پر تبصرہ کیے بغیر مجھ سے کہا۔ میں سر ہلاتی کمرے میں آ گئی، وہ اندر موجود نہ تھا، شاید نماز پڑھنے گیا ہو۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور سوچے گئی، باہر آئی تو ابو کو سامنے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ارے بھائی بہو، میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کا کھانا بھی تم لوگ باہر ہی کھا کر آؤ گے۔ انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ نہیں ابو، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے جلدی سے کہا۔ ویسے اچھا کیا، انہوں نے رازداری سے کہا تھا۔ اچھا ہے، آج ہی رات کے کھانے پر کھیر کا افتتاح ہو جائے گا۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ آج تم نے کھیر بنائی تو میں انتظار نہیں کر پا رہا۔ ابو نے اتنی معصومیت سے کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ لوگوں نے دوپہر کے کھانے پر ہی افتتاح کر لیا ہوتا، اتنا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ابو سے کہا۔ ارے واہ، عفنان کے بغیر کیسے کر لیتے؟ شوہر کا حق تو پہلے، وہ اسی انداز میں بولے۔ میں فقط ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھر رات کے کھانے پر بھی میں نے عفنان عادل کو ان کا کھاتا کم اور کھیلتا زیادہ پایا تھا۔ جب کھیر کی باری آئی اور ابو کے بتانے پر کہ میں نے بنائی ہے، اس کا چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ میں اس کو چوری چوری دیکھ رہی تھی، وہ بغیر کچھ کہے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر اپنے پیالے میں موجود کھیر ختم کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں نہ شوق تھا نہ رغبت۔ اس نے ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کھیر بھی نہیں لی تھی، جبکہ گھر بھر نے مزے لے کر نہ صرف کھائی تھی بلکہ بے حد تعریف بھی کی تھی۔ ابو، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے مجھے انعام بھی دیا تھا۔ مجھے اتنی محبتوں پر رونا آنے لگا۔ واقعی عفنان عادل کے گھر والے بہت اچھے تھے، اور وہ خود بغیر کچھ کہے کوئی کمپلیمنٹ دی اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اس کے انداز پر حیرت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی مجھے تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی تھی، لیکن میں سب کے چلے جانے کا انتظار کرتی رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے ابھی پوری ٹیبل سمیٹی بھی نہیں تھی کہ بڑی بھابھی چھوٹی بھابھی نے مجھے فوراً آرام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میں تھک تو گئی تھی مگر اتنا بھی نہیں۔ بہرحال ان دونوں کے اصرار پر جب میں کمرے میں واپس آئی تو خلاف توقع عفنان عادل پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت سی ہوئی، عموماً میں اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ پھر 2-3 باتوں کے بعد اس نے کھیر کی تعریف کی تو مجھے اچھا لگا تھا۔ پھر جب اس نے مہر کا چک دیا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ آج واقعی اس کی دماغی حالت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس رات اتنے عرصے بعد میں نے اسے پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، جو میں نے کبھی اسے بھی کہے تھے۔ مجھے ایک ایک لفظ یاد تھا، اور اس میں بھولنے والی کوئی بات تو نہیں تھی۔ میں مسکرائی جا رہی تھی۔ الماس، تم ہنستی تو نہیں ہو؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا تھا۔ کوئی ہنسنے والی بات ہوگی تو ضرور ہنسوں گی، میں نے اس کے جملے کو اس کو لوٹا دیا تھا۔ ہنسنے پر تمہارے گالوں پر ڈمپل پڑتے ہیں، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نے نوٹ نہیں کیا؟ میرے بولنے پر اور مسکرانے پر میرے گالوں میں ڈمپل پڑتے ہیں، میں نے فوراً کہا۔ تمہارے ڈمپل مجھے پسند تھے، وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا۔ وہ کہتے کہتے چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہارے پمپلز کہاں گئے؟ اس کے سوال پر میں نے خاصی حیرانی سے اسے دیکھا۔ پمپلز تو اب نہیں رہے، میں نے الجھن سے بتایا۔
وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے، مگر وہ وہاں انگلینڈ میں وہ کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا۔ انگلینڈ میں کیا؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ عجیب ادھوری ادھوری سی باتیں کر رہا تھا وہ، نہ سمجھ میں آنے والی۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، وہ نفی میں سر جھٹکنے لگا۔ تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہارے پمپلز کہاں گئے؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ میں نے الجھن سے دہرا دیا۔ پمپلز تو شاید اس وقت ایج فیکٹر رہے ہوں۔ میں نے سادگی سے کہا۔ اس کا یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے؟ میں نے الجھن سے کہا تھا۔ پھر مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ وہ ڈمپلز اور پمپلز، میں بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ وہ محویہ سے مجھے تکتا رہا، میری طرف ہاتھ بڑھایا، پھر ایک دم پیچھے کر لیا۔ میں نے کوفت کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہنستی رہو، اچھی لگ رہی۔ اور اس بار میں خاصی بے دلی سے ہنسی تھی۔ تو میری کسی بات کو ٹالتی نہیں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتے کہا۔ میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرتی؟ اس میں اختلاف کرنے والی بات بھی کیا ہے؟ اور میں تمہاری کسی بات کو کیسے ٹال سکتی؟ مجھے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ میں نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا۔ اتنا مانتی ہو تو مجھے؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ، میں نے یقین سے کہا۔ کیوں بھلا؟ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں افنان۔ تم میری عزت کرتی ہو؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا، پھر پوچھا۔ کیوں؟ افنان، اب اس سوال کا جواب میں تم کو کیا دوں؟ ہاں، اگر تم مجھ کو بتا دو کہ سورج زرد کیوں ہے، سرخ بھی تو ہو سکتا تھا، چاند گول کیوں ہے، چکور یا تکون کیوں نہیں، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، ہرا بھی تو ہو سکتا تھا، سورج صرف دن میں ہی کیوں نکلتا ہے، ستارے رات میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر تم مجھے ان سوالوں کے جواب دے سکو تو پھر میں تم کو بتا دوں گی کہ کوئی کسی کی عزت کیوں کرتا ہے۔ افنان عادل نے میری بات سن کر لمبا سکوت اختیار کیا۔ تمہیں مجھے دیکھ کر کوئی خیال نہیں آتا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر مجھے صرف یہ خیال آتا ہے کہ اب تم میرے شوہر ہو۔ تم جو کہو گے میں سنوں گی، مانوں گی، تم جو چاہو گے میں کروں گی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ ایک دم مسکرا دیا۔ پھر تو اچھا ہوا تم نے مجھے میٹھا کھلایا۔ اب جب تک میں تم سے نہ کہوں مجھے نمک مت کھلانا، کیونکہ اگر تم مجھے نمک کھلاتی تو مجھے نمک کا حق ادا کرنا پڑتا۔ اور نمک کا حق تم کیسے ادا کرتے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ میں پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا، ابھی فی الحال کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بات پلٹ دی۔ سینڈوچز بنا دوں، چلیں گے؟ ساتھ میں کافی؟ نہیں، اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ کھیر ہی لے آؤ، ہے کیا؟ ہاں ہے نا، ابھی لائی، میں نے مسکرا کر کہا اور فریج سے پوری ڈش اٹھا کر لے آئی۔ ارے اتنی ساری! وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بہت بنا لی تھی؟ نہیں، مگر تمہارے لیے امی نے خاص طور پر رکھوا دی تھی۔ میں نے اسے میں نے اسے کھیر علیحدہ پیالے میں نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری امی بہت اچھی ہیں، اس نے بہت مان سے کہا تھا۔ تمہارے ابو بھی بہت اچھے ہیں افنان، میں نے آہستگی سے کہا۔ منہ تک چمچ لے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ چمچ واپس پیالے میں ڈالتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، میں نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ میں اسے بتاتے بتاتے رہ گئی کہ ابو اور میرے درمیان کیا گفتگو ہو چکی۔ ممکن ہے کہ اس کی خودداری اس بات کو گوارا نہ کرتی کہ اس کی جانب سے کوئی اور بات کریں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اب مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے خود غور کرنے کی کوشش کبھی کی نہیں کیا؟ میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ممکن ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چند لمحے بعد اس نے بے جان سے لہجے میں کہا۔ جب تک وہ یہ بات خود مجھ سے نہیں کہیں گے اور جب تک میں خود ان کے منہ سے نہیں سن لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تم ان سے خود بات کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کتنی مرتبہ کروں؟ وہ طویل سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، انا، خودداری، غیرت، ان پر ختم۔ باپ سے کیسی غیرت، کیسی خودداری، کیسی انا، میں اسے کہہ نہ سکی تھی۔ کہیں وہ برا مان جاتا؟ اس کے موڈ کا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، آف ہو جاتا۔ وہ چیخ پڑتا، یہ میرا اور میرے باپ کا مسئلہ ہے، تم اس میں مت پڑو۔ ایسے میں کیا کر لیتی؟ میں نے اسرار مناسب نہیں سمجھا اور وہ خاصی بے دلی سے اپنے پیالے میں موجود کھیر ختم کر رہا تھا۔ مجھے افسوس سا ہوا۔ ناک میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ کم سے کم اسے ڈھنگ سے کھا تو لینے دیتی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچے گئی۔ وہ ایک دم چونکا۔ ارے میں اکیلا ہی کھائے جا رہا ہوں، تم بھی تو لو نا۔ اس نے ڈش میری طرف بڑھا دی تھی۔ نہیں بس تم کھاؤ، مجھے میٹھا کچھ پسند نہیں۔ میں نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں ابھی بھی نمکین زیادہ پسند ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا اور شکر ادا کیا۔ اس کا دھیان اس موضوع سے ہٹ گیا تھا۔ میں تمہیں ابھی بھی نمکین نمکین سا لگتا؟ اب کی بار اس نے قدر شرارت سے پوچھا تھا۔ یہ شرارت کبھی اس کے مزاج کا حصہ تھی اور اب؟ میں خاموشی سے اسے دھکے گئی، پھر آہستگی سے کہا۔ ہاں، حیرت ہے، میٹھا پسند نہ ہونے کے باوجود بھی تم کڑوی نہیں ہو۔ اس نے مزے سے میرے متعلق رائے دی۔ تم اتنا میٹھا کھانے کے باوجود بھی ایک دم ترش ہو، بالکل کھٹے۔ اور تمہیں کھٹاس پسند نہیں؟ نہیں، اب میں کھٹاس برداشت بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں ابھی بھی کچی چیزوں کا مزہ پسند ہے؟ کچے امرود، کچے آم؟
नहीं, अब कच्ची चीज़ों से मुझे डर लगता है। उसका लहजा बहुत गहरा था। चाहे वो कच्चे आम हों, कच्चे अमरूद हों, कच्चे लीमू या कच्ची मिट्टी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। आम, अमरूद, लीमू तो बात समझ में आती है, लेकिन कच्ची मिट्टी? वो कह रहा था, कच्चे अमरूद खाकर पेट खराब होता है और कच्चे आम खाकर। मैंने बेख्तियार पूछा, गला? उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं बेख्तियार आने वाली हंसी रोक नहीं पाई थी और संजीदा सा मेरी हंसी को एकदम ब्रेक लगे। मैंने संजीदगी से पूछा, अच्छा, कच्ची मिट्टी का क्या मामला है? उसने एकदम होंठ भींच लिए। कच्ची मिट्टी बहुत खतरनाक होती है, उसने संजीदगी से बताया था। उससे उठने वाली भीनी और सूंधी महक आदमी को पागल कर सकती है। मुझे तो कभी नहीं किया, मैंने एतराज़ किया था। ये आदमी की बात मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया था। अजीब बात कर रहे हो, कच्ची मिट्टी कैसे आदमी को पागल कर सकती है? तुम नहीं समझ सकोगी इस बात को, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मैं नहीं समझ सकूंगी तो तुम समझा दो। मैं तुमको समझा नहीं सकता, उसने लाचारी से कहा। अच्छा, तो फिर तुम मुझे यही समझा दो कि हमारी रिलेशनशिप की नोयत क्या है। मैं तुमको ये भी नहीं समझा सकता क्योंकि एक्चुअल रिलेशनशिप डेवलप हो ही नहीं पाया, उसने नज़र झुकाकर आहिस्तगी से कहा। तो फिर हमारे दरमियान क्या है अफनान? अ, उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मैंने अपना सवाल दोहराया था। हमारे दरमियान क्या है? हमारे दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं अब? क्योंकि अब हमारे दरमियान सिर्फ एक बैरियर है, उसने बदस्तूर सर झुकाए हुए जवाब दिया। कैसा बैरियर? मुझे जाहिर है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया था। तुम समझ नहीं सकोगी, उसने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, और मैं तुमको समझा नहीं सकूंगा। कहते कहते वो एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं जो हैरत में डूबी उसके अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही थी, उसके इस तरह उठने पर हैरत ज़दा हो गई। क्या हुआ? मैंने बेख्तियार पूछा था। कुछ नहीं, उसने अपनी चादर और कुशन उठाते मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। सोने में बहुत देर हो गई। वो फ्रेश वो फर्श पर अपना बिस्तर बिछा रहा था और मुझे कल ऑफिस जाना है। तुम भी अब सो जाओ। वो आंखों पर बाजू रखकर लेटे हुए मुझे मशवरा दे रहा था। मैं बस उसे देख रही थी। वो शायद सो भी चुका था। मैं जल भुन सी गई। इस आदमी के साथ मसला क्या है आखिर? मैंने झुंझुलाकर सोचा। इसको बैठे बिठाए क्या हो जाता है? ज़हनी रूह बहक क्यों जाती है एकदम? मैं खुद से सवाल करती रही। मुझे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। और इसका ये रवैया ना सिर्फ उस रात बल्कि अगली कई रातों और दिनों में ऐसा ही था। उलझन लिए हुए और उलझन में मुब्तला कर देने वाला। कुछ ना समझ में आने वाला। वो कभी तो इतना मेहरबान हो जाता और कभी एकदम रूड और हार्श। कभी इतना करीब होता कि हाथ बढ़ाकर पकड़ लो, कभी इतना दूर कि भागते भागते थक जाओ और छू भी ना सकूं। कभी कभी शनासा सा लगता कि जैसे सदियों की जान पहचान हो, और कभी इतना अजनबी के पहचान भी ना हो पा रही हो। कभी मोम की तरह लगता कि जैसे चाहूं ढाल लूं, और कभी ऐसा पत्थर जो किसकाया भी ना जा सके। कभी इतना भला कि जैसे चांदनी बरसाता चांद, और कभी इतना बुरा लगता जैसे आग बरसाता सूरज। कभी वाकई शरीके सफ़र लगता तो कभी एक दम गैर पराया ना महरम मर्द। मैं उसके रवैये से अब थकने लगी थी। मुझे अब लगने लगा कि जैसे वो मोम नहीं, वो पत्थर ही है। मैं चाहे जो भी कर लूँ, कर कर के मर जाऊँ, वो मोम नहीं हो सकता। कभी नहीं। और सच बात तो यह है कि मैं सब कुछ तो करके देख चुकी थी। पागलों की तरह सबको अपना करने की कोशिश में थी। उसके वालिद वालदा, उसके बाकी घर वाले। वाकई मैं कहाँ थी? मैं तो ख़त्म हो गई थी उन सब के बीच। और अगर उसके घर वाले मेरे गर्वेदा थे तो मुझे उसके घर वालों से क्या करना था? वो तो फिर भी मोम नहीं हुआ था। वो तो फिर भी मोम नहीं हुआ था, पिघला नहीं था। मुझे सख्त मायूसी होने लगी। मेरी बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। हर रात मेरे घुट घुट कर सिसकियाँ लेते, और सुबह का आगाज़ रोते हुए होता था। पहले जज्बातियत में, और अब तो मैं संजीदगी से अलहदगी के इम्कानात पर गौर करने लगी थी। मुझे लगने लगा कि बेशक मुझे उसे दे दिया गया है, मगर हमारा साथ ज़्यादा पक्का नहीं। मैं शायद किस्मत में यही लिखा था, मेरी के शादी के कुछ अरसे बाद मुझे तलाक हो जाए। मैं जितना सोचती मेरा यकीन मजबूत होता जाता। इसका रवैया पहले भी नाकाबिले फ़हम ही लगता था। अब तो इसका कोई अंदाज़ मुझसे हज़म नहीं होता था। वो कभी तो इतना केयरिंग हो जाता कि उससे बढ़कर कोई ख़्याल रखने वाला आदमी पैदा ही ना हुआ हो। और अगर लापरवाही पर आता तो फिर लगता कि उससे लापरवाह आदमी उसकी बात कभी पैदा नहीं होगा। वो तवज्जो देता तो इतनी के दूर भी होती तो तकता रहता, और बेतवज्जी पर आता तो फिर मैं बे और बेतवज्जी पर आता तो मैं करीब भी अगर होती तो मैं कमरे के किसी कोने में डालकर भूल जाता। बोलने पर आता तो लगता कि उससे ज़्यादा बातें करने वाला कोई नहीं। चुप रहने पर आता तो उसी चुप में कई दिन गुजर जाते। अभी बेफिक्री से मुस्कुरा रहा होता तो अगले ही लम्हे होंठ भींच लेता, ऐसे जैसे कभी मुस्कुराया ही ना। अच्छा भला सुकून से बैठा होता और एकदम खड़ा हो जाता, टहलने लगता, सर पकड़ लेता, मौसम के मिजाज की तरह पल भर बदलता। उसका रवैया सामने वाले को हैरान कर देने वाला था, बल्कि मुझे तो परेशान कर देने वाला। मैं अभी भी उसके इस रवैये की आदी नहीं हो पाई थी। मैं इस आदमी को समझ नहीं पाई थी। उस दिन बड़ी भाभी से
मैंने खुद से एतराफ़ किया। इतने दिन इस आदमी के साथ रह लेने के बावजूद इसका रवैया मेरी समझ से बाहर है। ये मुझे समझने भी नहीं देता और खुद भी मुझे नहीं समझाता। मैं उसको देखती रहती और सोचती रहती। बिलाखिर मुसलसल सोचने बहुत रो धो लेने के बाद मैंने अफनान आदिल से हतमी बात करने का फ़ैसला कर लिया था और मैं जानती थी कि उससे बात करने का वक़्त वही हो सकता है जब वो कल की जब वो कल के लिए तैयारी कर रहा होता। क्योंकि इस दौरान इसको लाज़मी तौर पर तौन करन ही सही कमरे में मौजूद रहना पड़ता। हत्ता कि जब वो सोने के लिए लेटने लगता और जब मैं उससे कोई बात करना चाहती तो साफ अंदाज में कह देता, प्लीज़ मैं सोना चाहता हूँ। फिर मुझे इतने कतई अंदाज पर कुछ मज़ीद कहना गवारा नहीं होता था। और उस रात जबकि वो अपने कपड़ों पर इस्त्री करने के बाद जूतों पर पॉलिश कर रहा था तो मैंने उससे ठहरे हुए लहजे में पूछा, अपना तो मुझसे राज़ी नहीं हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो हाथ रोककर हैरत से मुझे देखने लगा। क्या मतलब है? और मैं बिला तमहीद और बगैर लगी लिपटे सीधा सीधा उससे तलाक का मुतालबा कर दिया था। इस अपनी बात कहकर मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश देखी थी। दाने हाथ में पकड़ा ब्रश ज़मीन पर रखते हुए ब्रश में लकी स्याह पॉलिश उसके शिफाफ कपड़ों पर लग गई थी। मुझे देखकर बड़ा इत्मीनान हुआ था। अजीब सी खुशी मिली थी। दिल को के सामने वाले को हिला कर रख देने वाला अफनान आदिल खुद लरज़ रहा था। उस रात जब मैं अपने जूतों पर पॉलिश कर रहा था तो अलमास निहायत खामोशी से मेरे बराबर में आन कर बैठ गई थी। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर खामोशी से अपना काम करता रहा। अफ़नान, तुम मुझे तलाक दे दो। मैं उसकी बात सुनकर साकित सा रह गया था। मुझे एकदम ख्याल आया कि सिर्फ उसे तलाक देने का इरादा कर लेने पर मेरे बाप पर आफत आ गई थी और मैं उसे तलाक दे देता तो पता नहीं मेरे घर भर का क्या होता। ये सोच मुझ पर कपकपाहट तारी कर गई थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैंने सर्द लहजे में पूछा था। हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तलाक दे दो। उसके लहजे की संजीदगी, उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। अब की बार मेरा दिमाग घूम गया था। ताहम मैंने खुद पर काबू पाते बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, और मैं क्या कहकर तुम्हें तलाक दूँ? तुम कुछ भी कह देना। मैं बदकिरदार थी, बदज़ुबान थी, फूहड़ थी, शौहर के हकूक़ का ख़्याल नहीं रखती थी। तुम कोई भी जवाज़ बना लेना, बस तुम मुझे आज़ाद कर दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। मैंने तुरंत लहजे में कहा। ये अच्छी रही, मैं तुम पर इल्ज़ाम तराशी करूँ, बहतान बांधूँ। एक तो पहले ही बर्बाद हूँ, मैं मज़ीद गुनाह करूँ, तुम पर इल्ज़ाम तराशी करके बहतान बांध कर और तलाक देकर। अच्छी तरह से सुन लो, मैं तुमको तलाक तो किसी सूरत नहीं दूँगा। आइंदा ये लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। मैंने निहायत खुरदरे लहजे में कहा। और तुम मुझसे तलाक लेकर जाओगी कहाँ? दोबारा अपने माँ बाप के दर पर पड़ जाने का इरादा है? तुम्हारे साथ तो पहले ही दो बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं। तीसरी मर्तबा तुमको मेरी सूरत एक, मैं खुद को उल्लू का डैश कहने जा रहा था। बर वक्त मैंने अपनी ज़ुबान रोकी थी। आदमी मिल गया। तलाक का लेबल लग जाने के बाद तुमको कौन मिलेगा जो तुमसे शादी करे? जानती भी हो तलाक याफ्ता औरत को हमारे माशरे में किस नज़र से देखा जाता है। मैं तेज़ लहजे में कहता चला गया। माशरा जाए भाड़ में, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुमसे तलाक लेकर अपने माँ बाप के दर पर भी नहीं जा पड़ूंगी। मैं किसी तरह अरमान में रह लूँगी, किसी हॉस्टल में रह लूँगी। मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन कोई यूं ही तो नहीं है। मैंने एमफिल किया है, मैं जॉब कर लूँगी। मैं तुमसे तलाक लेकर किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, बस तुम मुझे तलाक दे दो। वो खासी रंजीदगी से कह रही थी। अलमास, तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैंने झुंझला कर कहा था। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर निहायत फैसलाकुन अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे तलाक मत दो, मैं तुमसे खुला ले लूँगी। क्या? उसके इस अंदाज पर और उसकी बात पर गिरते गिरते वजह था। तुम मुझसे क्या क्या ले लोगी? ज़रा दोबारा कहना। मैं तुमसे खुला ले लूँगी। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। अलमास, तुम अभी फ़ौरन उठ जाओ यहाँ से। मैंने अपने गुस्से पर बड़ी हद तक कंट्रोल करते हुए कहा। तुम चली जाओ मेरे सामने से। मैं कहता हूँ मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको मार बैठूँ। तुम मुझे मारोगे? उसने बेयकीनी से पूछा था। तुम बकवास करती रही तो यकीनन मारूंगा। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम मुझको ऐसा कोई मौका मत दो। मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा और ये बात भूल जाओ कि तुम मुझसे खुला ले लोगी। वो दो टोक लहजे में जितनी बदतमीजी बदतसीबी दुरुस्त करख्त और खुरदरी लहजे में कह सकता था। मैंने कहा था, तुम तुम मुझे ना मार रहे हो ना मर जाने दे रहे हो। अलमास के लहजे की बेबसी ने मुझे बेबसी में मुब्तला कर दिया था और इससे पहले कि मैं सुलग कर लटक कर उसे कुछ कहता वो खुद ही उठकर चली गई थी। मैंने तब से शुक्र अदा किया था। मैंने उस दिन पर बहुत बस मैंने उस दिन पर बस नहीं किया था, बल्कि अब मैं किसी भी बात पर अलमास को निहायत बदतमीजी से डांट दिया करता था, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मार्था एवांस को झाड़ दिया करता था। मार्था एवांस की तरह अलमास भी पलटकर मुझे जवाब नहीं देती थी। इन दोनों घरों इन दिनों घर वालों से मेरा इंटरेक्शन बराए नाम ही रह गया था और मेरी जहनी रोह का वो आलम था कि एकदम बहक जाती थी।
मैं क्या करता मेरी खुद समझ में नहीं आता था कि मुझे बैठे बैठाए क्या हो जाता है। मेरा रवैया खुद मेरी समझ से बाहर था। मैं कभी भी ऐसा नहीं था, इतना लाचार, इतना मजबूर, इतना बेबस। मेरे मिजाज में चिड़चिड़ाहट मुसलत होती जा रही थी। कभी यकयक उदासी हमलावर हो जाती, कभी मायूसी अपनी लपेट में ले लेती। कभी गुस्सा आता कि दिल चाहता एक दुनिया को उलट कर कभी इतना गुस्सा आता कि दिल चाहता एक दुनिया को उल्टा कर फेंक दूं। कभी इतनी बेजारी तारी हो जाती कि दिल चाहता किसी जगह भाग जाऊं, छुप जाऊं, फरार हो जाऊं, मुझे कोई ढूंढ ना सके। अब तो मेरे ऑफिस जाने को भी दिल नहीं चाहता था, हालांकि कभी मैं ऑफिस को ही फरार का रास्ता बनाए हुए था। और अब मेरा दिल चाहता था कि ऑफिस से भी फरार हो जाऊं। मेरा दिल चाहता ऑफिस से तवील छुट्टियां ले लूं। मैं यकीनन ऐसा कर भी लेता, मगर मेरा ओहदा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। किसी साइट पर काम भी आखिरी मराहिल में चल रहा था। मैं तौरन करहन साइट पर जाता, फिर ऑफिस आ जाता। मैं ऑफिस में खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता था। फिर भी कभी कभार मेरा टेम्पर बहुत बुरी तरह से लूज होता था। हालांकि मैं अपने मातहतों का बहुत ख्याल रखने वाला, इनकी गलतियां नज़रअंदाज करने वाला अफसर था। मेरे मातहत मुझसे बहुत खुश भी रहते थे, मगर कुछ अरसे से वो भी मेरे मिजाज से डरे डरे रहने लगे थे। अब तो ऑफिस में मेरे मुतल्लिक चहमगोइयाँ होने लगी। शादी से पहले तक तो अफनान साहब बिल्कुल ठीक ठाक रहा करते थे। जब से शादी हुई है परेशान रहने लगे। अगर शादी के बाद आदमी का ये आलम होता है तो फिर उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। अपने मातहतों को मैंने खुद ये गुफ्तगू करते सुना था, और मुझे ये सुनकर खासी शर्मिंदगी भी हुई थी। इसके बाद से मैं कोशिश करने लगा कि अपनी वजह से मैं दूसरों को तकलीफ ना दूं, और ये कोशिश मुझे भारी पड़ने लगी थी। मैंने अपने आप से तंग मैं अपने आप से तंग आ गया था, झुंझलाने लगा था। आइडियोपैथिक डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरी कोई एक कैफियत नहीं थी, मेरी कैफियत मुख्तलिफ थी, और मुझे अपनी किसी कैफियत पर इख्तियार भी नहीं था। मैंने खुद को बहुत खोजने की कोशिश की थी। मैंने खुद से बहुत पूछा था कि ऐसा क्यों मैंने खुद से बहुत पूछा था कि ऐसा क्यों है, और मैं अभी तक जवाब की तलाश में था। मेरी ज़िंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी, और अब हर सवाल मुझे खौफ में मुब्तला करने लगा था, मुझे थकाने लगा था। मुझे अब हर सवाल और हर सवालिया जुमले से चिढ़ होने लगी थी, ख़ास तौर पर इस क्यों से। एक अलमास और मेरा खून जलाने के लिए सामने रहती थी मेरे। इसको देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। कुछ दिनों से तो अलमास का रवैया अजीब होता जा रहा था। वो मुँह से कुछ कहती नहीं थी, बस मुझे देखती रहती थी। उसके देखने के अंदाज में अजीब सी कैफियत होती, कुछ खोजती हुई, कुछ पूछती हुई, इल्ज़ाम देती सी। इसका इस तरह देखना मुझे मज़ीद खौफ़ में मुब्तला कर देता था। मैं बुरी तरह झुंझला जाता था। उसके देखने के इस अंदाज़ पर। इस रात भी वो मुझे कुछ मिली-जुली कैफ़ियत का शिकार होकर बहुत बुरे मूड में कल के पहने जाने वाले उस रात भी मैं कुछ मिली-जुली कैफ़ियत का शिकार होकर बहुत बुरे मूड में कल के पहने जाने वाले कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था। अलमास कुछ कहे बगैर मुझे देखे जा रही थी। उसका इस तरह देखे जाना मुझे उलझन में मुब्तला कर रहा था। मुझे सख्त झुंझलाहट और चिड़चिड़ाहट हो रही थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, और प्लीज़ 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 कमेंट तो ज़रूर किया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।